Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am from Legend Institute of Management and Sciences from Multan. This is the lecture number 9 and the department is BS English 4th semester. Subject is the morphology and syntax and the topic is different approaches towards syntax. हम इसकी डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो आज पढ़ेंगे सिंटैक्स की, ठीक है। और माय नेम इज़ इकरा खान। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक अप्रोच डिफरेंट अप्रोचेस टुवर्ड्स सिंटैक्स। द डिफरेंट जो हैं वो इनकी अप्रोचेस हैं वो उनके नेम्स के साथ हम उनको स्टार्ट करेंगे जी। डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले उसका पर्पस क्या है। To analysis sentences simple type a statement form in terms of 3 types of grammar। अब देखें कि हम अगर हम इसका पर्पस देखें तो ये 3 टाइप्स ऑफ जो है वो ग्रामर के इसमें मेन जो है वो होते हैं, ठीक है। वो होंगे कौन कौन से? सबसे पहले होगा ग्रामर में ट्रेडिशनल, स्ट्रक्चरल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर इन एडिशन, to presenting some hints about analyzing sentences which are semantically the same but with different words order from the point of view of the 3 grammatical approaches, ठीक है। इसमें हम 3 grammatical approaches जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मेन है, ट्रेडिशनल है, स्ट्रक्चरल है, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर इन एडिशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका मेथड। Reviewing related literature and presenting examples that show the analysis of the sentence according to each grammatical school briefly, ठीक है। अब results देख लेते हैं। Each type of the 3 grammatical approaches has different terminology and yet strategy when analyzing a sentence. For instance, in traditional grammar, the sentence is divided into units, into pattern, in structure grammar, and into elements and phrases in transformational grammar. In addition, in both traditional and structural grammars, a number of sentences which have identical meanings with different word order are considered totally different from one another when being analyzed. Whereas in transformational grammar, the sentences share the same base and are analyzed in terms of surface and deep structures for each one, ठीक है। यानी हम इन सब स्ट्रक्चर्स को जो है वो एज ए ग्रामेटिकल ग्रामर के थ्रू भी देखते हैं और हम उनके डीप एनालिसिस भी करते हैं और उनको जो है वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उनकी फिर स्ट्रक्चरल और ट्रेडिशनल, हम इन तीनों जो है वो वेज के साथ उनकी जो है वो स्टडी करते हैं। वो हम आगे देख लेते हैं कि किस तरह से हम इनकी स्टडी करते हैं जी। कंक्लूजन्स। The 3 presented grammatical approaches can be arranged in terms of the most detailed approaches as transformational grammar, traditional and finally structural grammar, ठीक है। जी। कीवर्ड्स सिंपल सेंटेंस एनालिसिस, ट्रेडिशनल ग्रामर एंड स्ट्रक्चर ग्रामर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर्स, ये ठीक है, ये वाली हमने इसमें स्टडी करने हैं। इंट्रोडक्शन। It is totally agreed by most of the world linguists and mainly grammarians that whatever number of grammar types we do have, they all basically aimed at stating some statements about linguistic units, that is how each unit, part or even element functions and operates in sentences. In spite of this, each type of grammar would in one way or another differ from another type of grammar, and that is why one type of grammar has an advantage differ from over another. In this research paper, however, the researcher is going to introduce comparatively the sentence in English, mainly the simple sentence type. Put another way, this research paper is too folded. In one case, the sentence is defined from the point of view of जी स्टार्टिंग से ही है ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। यानी स्टडी करते हैं 3 टाइप्स ऑफ ग्रामर की। ट्रेडिशनल है, स्ट्रक्चरल है एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, एंड देन
analyzed also from the point of view of these grammars. The other part in this research paper is showing how two types of grammar, traditional and structure, would consider two or more sentences which have identical structures as the same and they are actually different, or sentences which have different structures with the same constituents as different ones and they actually internally share one base. Literature review. Sentence definitions. Principally and according to traditional grammarians, in a sentence is a group of words containing a subject plus a predicate and expressing a complete thought. जैसे कि मैंने आपको क्लोज की और सेंटेंस की जो है वो डेफिनेशन बताई थी, ये सेम वैसी ही है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट थॉट. ठीक है. Unsatisfied with such definitions, modern grammarians include structuralists and transformationalists have criticized such a definition for being vague and too general. They claimed that such a definition would make any sentence which contains of a subject plus a predicate as a sentence. To some extent, what they have said is true, but it is clear that they, for one reason or another, have ignored the last part of the traditionalist definition, expressing a one person a complete thought. For instance, consider the sentence. It is sentence है अहमद having played football. ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंस है, इसको देखें. अब इट इज़ ट्रू डैट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनलिस्ट definition that this sentence is true, but if we admit that we have ignored that last part of their definition because they said it must express a complete thought, and here this condition is not achieved. Consequently, such a claim direct against traditionalists by other grammarians is not that responsible. जी आगे देखें. Therefore, structuralist view a sentence in terms of pattern, one that is made up of constructions, and yet constructions are made up of constituent which in turn are made up of words, यानी मॉर्फीम से बनते हैं. ठीक है. Hence a sentence is a constituent of nothing. For transformationalist, a sentence is a group of words within which a full syntactic analysis is possible, yet which has at least one deep structure and a surface structure, or vice versa. Usually a sentence will have the same surface and deep structures. ठीक है. यानी इसमें जो है वो वाइस वर्सा जो है वो भी इंक्लूड होना चाहिए. ये है ट्रेडिशनलिस्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है. जबकि स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो कहती हैं कि उसमें सिर्फ जो है वो कंप्लीट थॉट्स होती है, प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट होता है. इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. सेंटेंस एनालिसिस हमने जो है वो अब हम Sentence analysis have presented the definitions of the sentence from the point of view of the three types of grammar. We now look at the sentence analysis or more accurately that what kind of statements does each type of grammar would make about a particular sentence in English. अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. द स्टूडेंट डिड द होमवर्क. अब इसमें स्टूडेंट सब्जेक्ट आ गया, डिड द होमवर्क ये प्रेडिकेट है. जी. ट्रेडिशनल ग्रामर एनालिसिस. ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. द स्टूडेंट डिड द होमवर्क. एनालिटिकली द वर्टिकल लाइन, जहाँ पे ये वर्टिकल लाइन डिड के बाद डाली है, इसको देखें. Vertical line indicates the elements to the left are the subject of the sentence
एंड ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट ऑफ द राइट आर द प्रेडिकेट। अब जहाँ वर्टिकल लाइन है वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट के बाद से शुरू हो रहा है, यानी डिड द होमवर्क। अब जहाँ पे राइट लाइन है वो एलिमेंट्स टू द राइट आर द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। जहाँ से ये बिल्कुल राइट लाइन है वहाँ से शुरू हो रहा है आपका एलिमेंट, यानी सेंटेंस का प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है उधर से, ठीक है, यानी डिड से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम प्रेडिकेट में वर्ब को और ऑब्जेक्ट को दोनों को इंक्लूड करते हैं, सब्जेक्ट सिंगल होता है बस। again the slanted line indicates that the element to the left is the verb of the sentence and the element, ठीक है। जहाँ उन्होंने slanted यानी वर्टिकल लाइन डाली है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ वो कह रहे हैं कि हमने डिड को जो है वो लेफ्ट किया है वहाँ पे, क्योंकि वो वर्ब है सेंटेंस का। सेंटेंस एंड द एलिमेंट टू द राइट इज़ द ऑब्जेक्ट, और जो आगे वाला पार्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट है, यानी डिड जो है वो वर्ब है और द होमवर्क इज़ द ऑब्जेक्ट, जबकि द स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट है। द स्टूडेंट डिड द होमवर्क, तो द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, डिड वर्ब है, द होमवर्क ऑब्जेक्ट है। और जब हम प्रेडिकेट में देखते हैं तो वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों जो हैं वो प्रेडिकेट में काउंट होते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, डिड द होमवर्क जो है वो प्रेडिकेट है। देन द वर्ड्स आर then the words are identified individually or by parts of speech, ठीक है। इनको हम by parts of speech जो है वो individually जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर इंस्टांस स्टूडेंट्स एंड होमवर्क आर स्टूडेंट एंड होमवर्क आर नाउन्स, द फॉर्मर इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड इज ऑब्जेक्ट। अब देखें, अगर हम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर इंडिविजुअल कर लें, सेपरेट करें, तो फिर हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट जो है वो भी नाउन है, होमवर्क भी जो है वो नाउन है, ये दोनों, जबकि फॉर्मर इज़ सब्जेक्ट एंड द सेकंड इज़ ऑब्जेक्ट। जबकि हम देखें स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग यानी ट्रेडिशनल ग्रामर एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो जो स्टूडेंट है वो हमारे पास नाउन है यानी सब्जेक्ट है, और जो सेकंड है होमवर्क वो ऑब्जेक्ट है। द एज एन आर्टिकल, जो द है वो आर्टिकल है, एन भी आर्टिकल है, एंड डिड एज अ वर्ब, और डिड जो है वो है वर्ब। अब अगर हम स्ट्रक्चर ग्रामर के जो है वो एनालिसिस करें इसके, तो फिर इसकी भी एग्जांपल्स जो है वो हम देख लेते हैं जी। द स्टूडेंट डिड द होमवर्क, इसमें कैसे होगा, द सेंटेंस पैटर्न ऑफ दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर लिस्ट। अब स्ट्रक्चर लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो था, ट्रेडिशनल लिस्ट के अकॉर्डिंग था, हमने जो ऊपर पढ़ा है ट्रेडिशनल लिस्ट के अकॉर्डिंग था कि वो उसको जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, और उसको वर्टिकल लाइंस और ये कॉलम लाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो इसको करते हैं। जबकि स्ट्रक्चरल ग्रामर एनालिसिस में द स्टूडेंट डिड द होमवर्क, द सेंटेंस पैटर्न ऑफ दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर लिस्ट। अब देखिए वो कैसे है, डिटर्मिनर एन नाउन, ट्रांजिटिव वर्ब और डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, इसको देख लें। Analytically, that would stand for determiner, the and n for nouns, students and homework। अब यानी इसमें डिटर्मिनर जो है वो दा, यानी स्टार्ट किया दा से तो डिटर्मिनर हो गया दा से स्टार्ट, एंड एन जो है वो नाउन है यानी स्टूडेंट है, एंड ट्रांजिटिव वर्ब है डिड, और डू यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो है होमवर्क। येट वी हैव टू नाउन्स, वन फंक्शंस एज द सब्जेक्ट एंड अदर एज द ऑब्जेक्ट, यानी इनके पास टू नाउन है, स्टूडेंट भी और होमवर्क भी, ये दोनों अगर देखा जाए तो बेसिकली ये दोनों नाउन है। लेकिन इस सेंटेंस में ये दोनों जो नाउन्स जो हैं, ये एक जो है वो फंक्शन उनका है कि वो नाउन के तौर पे यानी सब्जेक्ट के तौर पे है, और एक नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है of the transitive verb. It is worthy to note that there is also one more way of analyzing the sentence from the point of view of structuralist, which is with the use of the immediate constituent analysis, ठीक है, यानी ये immediate constituent analysis के अकॉर्डिंग भी इसको अगर हम करें, but the above mention is one is enough for our research paper here, यानी जो हमने ऊपर अभी आपको बताया ये इतना भी इनफ है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर एनालिसिस।
सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल्स देख लें। जी, द स्टूडेंट डिड द होमवर्क, सेम एग्जाम्पल्स को अब उन्होंने किस तरीके से किया। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लिस्ट जो है वो देखें, वो इस तरीके से सेंटेंस जो है वो उनका एनालिसिस करते हैं ग्रामर्स का। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सेंटेंस है, ठीक है, सॉरी, सेंटेंस में सबसे पहले नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ठीक है, ये जो दो एरो बने हैं नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज है। ये सबसे पहले ये जो है ये सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ठीक है। अब नाउन फ्रेज के पास देख लें आर्ट, द है सबसे पहले, ठीक है, और नाउन आ गया स्टूडेंट यानी द स्टूडेंट। आर्टिकल आ गया सबसे पहले, द आर्टिकल है, एन जो है यानी नाउन है, स्टूडेंट, द स्टूडेंट, तो ये नाउन फ्रेज। अब वर्ब फ्रेज में क्या है, डिड, वर्ब आ गया है, और उसमें क्या है, नाउन फ्रेज एक और आ रही है यानी दी आ रहा है, फिर से आर्टिकल और होमवर्क यानी नाउन। इस तरह से उन्होंने इसको मेंशन किया। After diagramming the sentence, we then can either explain its analysis from top to down or from bottom up. In the former case, S stands for the whole sentence, ठीक है, S जो है वो sentence को कहा गया, NP for the noun phrase, VP for the verb phrase, yet the sentence S consists of two elements, ठीक है। अब देखें कि ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस जो है वो टू एलिमेंट्स पे जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है। कौन कौन से टू एलिमेंट्स पे, नाउन फ्रेज यानी एनपी और वर्ब फ्रेज यानी वीपी पे। यार द सेंटेंस एस जो है वो यानी कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखें फर्दर मोर द नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, आगे इससे भी ज़्यादा ये है कि नाउन फ्रेज भी टू एलिमेंट्स पे जो है वो कंसिस्ट करते हैं, आर्टिकल और डिटर्मिनर एंड नाउन, ठीक है। आर्टिकल और डिटर्मिनर जो है वो सेम हो गए, और एंड अ नाउन यानी नाउन पे और आर्टिकल पे या डिटर्मिनर पे और नाउन पे। एंड द आर्टिकल इज वर्ड द एंड द नाउन इज द वर्ड स्टूडेंट, अगेन द वर्ब फ्रेज। अच्छा, अब दोबारा हम आ जाते हैं वर्ब फ्रेज पे। ये भी जो है ये टू एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, वर्ब पे एक यानी इसमें मेन वर्ब होता है एंड द नाउन फ्रेज, और फिर इसमें एक नाउन फ्रेज आ रही होती है। द वर्ब इज डेड, डिड जो है वो वर्ब है, एंड द नाउन फ्रेज इज द होमवर्क, यानी इसमें भी एक डिटर्मिनर और एक नाउन यूज हुआ है, तो ये नाउन फ्रेज है। वंस अगेन द नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, अ नाउन विच इज अ होमवर्क एंड एन आर्टिकल यानी डिटर्मिनर विच इज द। इन द लेटर case from bottom up the analysis would be something like this: the is an article, determiner, student is a noun, did is a verb, the is an article। अगर हम स्टार्टिंग में लगाते हैं ना तो वो हम उसको डिटर्मिनर ही बोल देंगे, इज़ एन आर्टिकल, डिटर्मिनर एंड होमवर्क इज़ अ नाउन। अब यहाँ पे वो यूज़ हो रहा है एज अ ऑब्जेक्ट जो है होमवर्क। आर्टिकल्स एंड नाउन्स आर कंबाइंड टू मेक नाउन फ्रेजेस एंड वर्ब एंड द फॉलोइंग नाउन phrases are combined to form of a verb phrases, and finally the former noun phrase and the verb phrase are combined to a form of a sentence। यानी किस तरह से ये सब चीज़ें मिलकर जो है वो एक सेंटेंस को बनाती हैं, यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। with the use of symbols and rules of phrase structures grammar, the structure of this sentence would be analyzed in the following way। अब देखें इसको हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, इस तरह से, ये इजी वे में आपको बताया। एस जो है सबसे पहले है वो सेंटेंस। अब ये दो चीज़ों पे कर रहा है कंसिस्ट, कौन से एलिमेंट्स हैं, नाउन फ्रेज और वीपी यानी वर्ब फ्रेज। अच्छा, अब नाउन फ्रेज जो है वो भी दो चीज़ों पे कंसिस्ट कर रही है, डिटर्मिनर और प्लस नाउन पे। अब वीपी यानी वर्ब फ्रेज जो है उसमें एक मेन वर्ब आ जाता है प्लस नाउन फ्रेज आ जाती है। अब वर्ब में क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है, और टेंस में क्या आ जाता है, पास्ट, डिटर्मिनर द एन स्टूडेंट। अब आपका टेंस था ये पास्ट था, डिड आ गया था उसमें, तो ये आपको पता चल गया कि आपका टेंस जो है वो पास्ट था। डिटर्मिनर आ गया दी, और एन जो है वो स्टूडेंट यानी नाउन, आपके पास स्टूडेंट एंड होमवर्क है, आपके पास वर्ब है डू या डिड, पास्ट में ईडी लग जाता है ऐसे कि डिड बन जाएगा। अब इसकी हम डिस्कशन देख लेते हैं।
जी basically provided information in the three types of analysis look apparently the same but they are entirely different. ठीक है, ये देखने में बेशक सेम लग रहे हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से. फॉर इंस्टेंस द इन द केस ऑफ द ट्रेडिशनल ग्रामर एनालिसिस वी, अब देखें, अब सबसे पहले हम ट्रेडिशनल ग्रामर एनालिसिस जब हमने उनके एनालिसिस किए हैं तो हमें पता चला है कि वी इसेंशली हैव 5 वर्ड्स. द स्टूडेंट डिड द होमवर्क, ये 5 हमारे पास एक टेंस में 5 वर्ड्स थे. द स्टूडेंट डिड द होमवर्क एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स और एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनलिस्ट. अब देखें, द स्टूडेंट डिड एंड द होमवर्क. ठीक है, यानी इन्होंने इसको 3 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया ट्रेडिशनलिस्ट ने. किन किन में? द स्टूडेंट, फिर डिड और द होमवर्क, 3 में कर दिया. Conversely, in the case of the structural grammar analysis, we will have these 5 elements divided into 5 elements just as the appear. अब देखें, सबसे पहले था ट्रेडिशनलिस्ट ने उसको किस तरह से किया और अब उसके बाद आ रहा है ट्रेडिशनलिस्ट एनालिसिस में कि उन्होंने उसके बाद आता है स्ट्रक्चरलिस्ट ने. अब स्ट्रक्चरलिस्ट ने उनको 5 वर्ड्स को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया. ट्रेडिशनलिस्ट ने 3 में किया और स्ट्रक्चरलिस्ट ने 5 में किया. अब वो 5 जो है वो कौन से हैं, उन्होंने एक एक डिफरेंट तरीके से आपको बताया. जस्ट एज दे अपेयर इन द ओरिजिनल सेंटेंस, कंसिक्वेंटली द वन कुड इन्फर दैट neither in traditional grammar nor structural grammar will tell us how these elements combine to make larger elements or how do they relate to each other. Instead, transformational generative grammar seems to solve this problem. जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया by telling us first how the whole sentence, कि जो सारा सेंटेंस है वो क्या है. एस यानी सेंटेंस है, उसके बाद उसके पार्ट्स एलिमेंट्स बता दिए, split into parts, and yet how these parts are combined to form of a elements till they reach to highest level which is the sentence. कि किस तरह से उन्होंने उसके पार्ट्स बनाए, एलिमेंट्स बनाए और किस तरह से उनको सेंटेंस बना दिया, उसको एक सेंटेंस को कंबाइन कर दिया, इन एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दिया. Have we introduced the first point, which is defining and analyzing the sentence from the point of view of traditional structural and transformational grammarians. We now look at the other. जी स्टार्ट में देखें, look at the other point, which is how 2 or more sentences are analyzed under one base in transformational grammar and are different in other 2 types of grammar, traditional and structural. यानी ट्रांसफॉर्मेशनल अलग से हैं और अगर हम इनको 2 टाइप्स के साथ जो है वो एनालाइज करें तो वो ट्रेडिशनल और स्ट्रक्चरल होंगी. एग्जांपल्स देख लें. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अहमद टू अंडरस्टैंड द लेसन. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अहमद टू अंडरस्टैंड द लेसन. अब सेकेंड देखें, द लेसन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अहमद टू अंडरस्टैंड. टू अंडरस्टैंड द लेसन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अहमद. Understanding the lesson is difficult for Ahmad. For Ahmad to understand the lesson is difficult. अब ये 5 sentences हैं, एक ही सेंस है, उसको 5 वे में जो है वो आप तक प्रोवाइड किया है. Now in terms of transformational generative grammar, such sentences would be considered as semantically identical but syntactically different. More importantly, all these sentences have been derived from one sentence, which is technically called a base sentence. However, the first sentence is the base here, all other sentences have been derived from it. अब देखें, एक सेंटेंस यानी जो फर्स्ट है वो एक सेंटेंस जो है वो बेस सेंटेंस है और बाकी जो 4 सेंटेंस है वो इसी में से इनको हमने चेंज करके बनाया गया. Hence, each sentence has been derived from the basic transformational rules or generative grammar. For instance, we make use of the rule of deletion and then change the word order of some other elements to form the second sentence. Moreover, one can notice that how the subject in each sentence has become different from the other one. It is by
Applying transformational rules we have been able to form all the above mentioned sentences. अब आप लोगों ने जो है वो मुझे बताना है, ये 5 सेंटेंस हैं, आपने इनको तीनों वे में डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज में चेंज करके उनको एनालाइज करके मुझे बताना है कि आप लोग इसको किस तरह से बनाते हैं। यानी अगर हम इसको ट्रांसफॉर्मेशनल के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये कैसे होंगे, स्ट्रक्चरल्स के अकॉर्डिंग करते हैं या ट्रेडिशनलिस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये किस तरह से होंगे। ये 5 सेंटेंस को आपने बताना है करके। जी नेक्स्ट देखें, टू रिटर्न द बोथ ट्रेडिशनल एंड स्ट्रक्चरल ग्रामर्स दे वुड कंसिडर ईच सेंटेंस डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सो ईच वन हैज़ अ डिफरेंट पैटर्न। ठीक है, यानी बेशक वो एक ही सेंटेंस है, एक ही बेस है, लेकिन उन पे स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट यूज़ किया गया, उनका पैटर्न हमने चेंज कर दिया, इसीलिए उनके स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज हो गए हैं। In the case of structural grammar, and each one has different grammatical units. In the case of traditional grammar, unlike both traditionalist and structuralist, transformationalist have argued and yet proved that these sentences though have different structures but they do share the same base, which make them related to each other not only semantically but also syntactically. We have already seen how one sentence deep structure sentence can have a number of the sentences surface structure sentences. Now we look at the opposite. One sentence structure surface structure sentence would have at least one or more deep structures. For examples, Sarah wrote a letter to her mother. According to both traditional and structural grammarians, this sentence would have only one meaning as it appears, that is subject yani Sara plus a predicate. In terms of traditional grammars, and then s plus v plus do yani direct object plus io yani indirect object. In terms of structural grammars, similarly in transformational grammars we have first to drive the possible meanings or sentences of this sentence, that is the deep structure सेंटेंस फ्रॉम द सरफेस स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल्स देख लें। सारा रोट अ लेटर टू हर मदर, सारा रोट अ लेटर टू हर मदर। ठीक है, अब ये सरफेस स्ट्रक्चर जो है इसको अगर हम डीप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करें तो देखें, डीप स्ट्रक्चर्स मीन सारा इज़ अवे एंड शी रोट अ लेटर टू हर मदर टेलिंग हर अबाउट हर सेल्फ। ठीक है, ये हो गया डीप स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर यानी आप सिंपली बात कर रहे हैं, बस उसको आपने डिटेल में नहीं बताना है। सारा रोट अ लेटर टू हर मदर, डीप स्ट्रक्चर्स मीन साराज मदर इज इलिटरेट, शी कैन नॉट राइट सो हर डॉटर सारा रोट अ लेटर टू हर सेंड टू इट समवन एल्स। कंक्लूजन देख लेते हैं। This research paper aimed at two main things: defining and analyzing the simple sentences in English from the point of view of traditional, structural, and transformational grammars. We have defined the sentence from the point of view of these three grammars and also analyzed the simple sentence from traditional grammar, form and position. ठीक है, यानी ट्रेडिशनल ग्रामर में आ जाएगा फॉर्म एंड पोजीशन, स्ट्रक्चरल ग्रामर एंड द सरफेस एंड डीप स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चरल में डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर आ जाएगा, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर में इट ऑल्सो हैव बीन शोन इन द नेक्स्ट पार्ट हाउ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर रिलेटेड अ नंबर ऑफ रूल्स टू वन बेस एंड ऑल्सो ड्राइव्स द नंबर ऑफ द sentences from the same base which other type of grammars cannot do. Thus it does not means that the researcher want to belittle other grammars, but in one way or another it just one way of showing the main differences between grammars of English and how do each type analyzes a simple sentence in English. ठीक है, यहाँ तक जो है ये कंप्लीट होता है टॉपिक, जिसमें मैंने आपको जो है वो बताया है। रेफरेंस जो है ये उन्होंने बताए हुए हैं, इनमें से जो है वो आप कुछ सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे रेफरेंसेस हैं। नॉम चॉम्स्की जो है वो बहुत अच्छा है। आई होप आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा इस लेक्चर को, और ये लेक्चर जो है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़। मुझे अपना फ़ीडबैक बच्चे लाज़मी दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।